بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو ماں، یہ اشف زمانہ زمانہ مدد دما درہائے بستراز کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارت، دشمن ہمیشہ پرگم بازک دو دارت۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ تمام سامعین ناظرین کی خدمت میں گزارش ہے کہ درود پاک کا نذرانہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ قبل اس کے کہ ہم عطا کردہ عنوان سے متعلق گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں، ہم حضور مسند رشید جادہ اشرف الشمنانی حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمود اشرف الجیلانی زاد اللہ عمرہ و بقاہ و نفع ببرکاتہ کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور حضرت کے لیے عمر خضر کی دعا کرتے ہیں کہ حضرت نے اس مہاماری کے دور میں سارے دنیا میں بیٹھے ہوئے اہل عقیدت اہل محبت مسلمان اور مخدوم پاک کے چاہنے والوں کے لیے نہ یہ کہ حضرت نے عرس کے سارے مراسم، اس کی تقریبات سیدہ اور اس کے پروگرامز کے دیکھنے کا انتظام فرمایا کہ جو جہاں پوری دنیا میں ہے بیٹھے بیٹھے اس متبرک پروگرام کی زیارت کرے، کل میں شرکت کرے، منہ مبارک کی زیارت کرے۔ بلکہ حضرت نے یہ بھی اظہار چینل کے ذریعے یہ مستحسن اقدام 2 سالوں سے کر رہے ہیں کہ مخدوم پاک کے، ان کے خاندان کے، ان کے پیر روشن ضمیر حضور علاء الحق والدین بن نواد لاہوری کی حالات، ان کی سیرت طیبہ، ان کے کردار، ان کے افکار، ان کے عشق و محبت کی داستان کے سلسلے میں حضرت نے یہ پروگرام سے مقرر فرمایا ہے تاکہ جہاں والوں کو معلومات حاصل ہو، لوگ اپنے ذہن و دماغ میں ان اولیاء اللہ کی محبتوں کو جگہ دیں اور ان کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے اپنی دینی دنیاوی زندگی کو آراستہ کریں۔ اس حیثیت سے حضرت قابل مبارکباد ہے۔ حضرت کے ساتھ پورے اظہار چینل کے کارندے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کی خدمات کو شرف قبول عطا فرمائے۔ حضرات، ہم نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، اچھوں کے ساتھ رہو۔ تقوی کے بعد اچھوں کے ساتھ رہنے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، رب تعالیٰ کا قرب بغیر اچھوں اور سچوں کی غلامی اور اس کی صحبت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ہر زمانے میں اولیاء اللہ
بزرگان دین نے پہلے علوم ظاہری سے اپنے آپ کو آراستہ فرمایا، مگر علوم ظاہری سے آراستگی کے بعد انہوں نے سچوں کی تلاش شروع کی، سچوں کی صحبت اختیار کی، اور یہ صحبت اس لیے اختیار کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو جو مقام بلند ملا، جو رتبہ بلند ملا کہ زمانے کا کوئی ولی، غوث، کتب بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، وہ رسول اللہ کے صحابہ کو، حضور پاک کے صحابہ، حضور پاک کے صحبت کی برکت سے حاصل ہوئی، اس لیے کہ نبی پاک کی ادنا صحبت کی برکت سے سارے جہان پر وہ حضرات معظم اور معزز ہو گئے۔ اس لیے ہر زمانے میں اولیاء اللہ، بزرگان دین نے صرف علوم ظاہری پر اکتفا نہ کیا، بلکہ علوم ظاہری حاصل کرنے کے بعد سارے جہان میں جہاں مقدر میں لکھا تھا، انہوں نے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جب عیسائی کی، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ کاغذ کی کتابوں سے خدا کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اگر خدا کا قرب حاصل ہو سکتا ہے تو اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ کہ 7 برس کی عمر میں حضور غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ نورانی نے قرآن حکیم کا حفظ کیا اور قرأت سبع عشرہ سے فراغت حاصل کی۔ 13 برس کی عمر میں تمام علوم عقلیہ و نقلیہ سے اپنے آپ کو مزین و آراستہ فرما لیا، تمام ظاہری علوم حاصل کر لیا، لیکن ظاہری علوم سے خدا کی معرفت، خدا کو قرب حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت مولا روم کا واقعہ استناد کی حیثیت رکھتا ہے کہ مولا روم، جن کا علمی جاہ و جلال اور ان کا علمی تمتراک پورے روم میں مشہور تھا، علماء کے درمیان بحث ہو رہی تھی، اتنے میں ایک فقیر مرد درویش پہنچا، ان کے بحث کے درمیان انہوں نے مداخلت کی کہ یہ کیسی بحث آپ کی ہو رہی ہے؟ مولا روم کو جلال آیا، انہوں نے کہا اے فقیر، ہم علماء کی بحث تم فقیروں کے ذہن میں نہیں آ سکتی، یہ علماء کا کال ہے۔ اس فقیر کو غصہ آیا، انہوں نے ان کی کتاب کو سامنے حوض دریا برد کر دیا۔ مولا روم بڑا خفا ہوئے، کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ ہم اہل علم کا تو یہی پورا گنجین علم ہے، یہی ہمارا خزانہ علم کا ہے، ہم اسی سے اپنے مقابل کے درمیان استدلال کیا کرتے ہیں، آپ نے دریا برد کر دیا۔ اس فقیر نے کہا کہ اگر ہم نے دریا میں ڈال دیا تو آپ نکال لیجیے اسے۔ چنانچہ پچھتانے کے بعد مولا روم نے جب اپنے ہاتھ کو دریا میں ڈالا تھا تو کتاب سچ مچ ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی حوض سے، اور کتاب پانی میں رہی، ایک قطرہ بھی پانی کا اثر کتاب کے ظاہر باطن پر، ایک حرف پر نہیں پڑا۔ مولا روم کو بڑی حیرت ہوئی کہ بہت دیر کتاب پانی میں حوض کے اندر رہنے کے بعد کتاب کو بھیگ جانی چاہیے، اس کے حروف مٹ جانے چاہیے، لیکن پانی کا ایک قطرہ کتاب پر، کتاب کے حروف پر نہیں ہے۔ اسی حیرت میں انہوں نے پوچھ لیا مولا روم نے یہ چیز یہ کیا ہے؟ اس فقیر نے جلال میں کہا کہ عالم، اے مولا روم، اگر ہم فقیروں کو آپ علماء کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر ہم درویشوں کو آپ کا کال سمجھ میں نہیں آتا، تو تم عالموں کو ہم علماء کا حال ہم فقیروں کا حال سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ ہم فقیروں کا حال ہے، یہ تم علماء کے بس کی بات نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ مولا روم کے حجابات اٹھ گئے، انہوں نے حضرت اس فقیر کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ وہ فقیر آنے والا مرد درویش حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے فرمایا کتابوں کو دریا برد کر دو، کتاب کو آتش نمرود میں ڈال دو، اس لیے کہ خدا کا قرب کتابوں سے حاصل نہیں ہو سکتا، خدا کا قرب اللہ والوں سے حاصل ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم
मौलवी हरगिर नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी नशुद। बस इसी के पैसे नजर हर जमाने में बड़े बड़े अकाबिर औलिया ने अपने से बड़े बुजुर्गों की बारगाह में जब ईसाई की है ताकि हमें खुदा का कुर्ब हासिल हो, विसाल हासिल हो। इन्हीं बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलते हुए मखदूम सुल्तान गौसुल आलम सैयद जहांगीर समनानी कशौशी रहमतुल्लाह अलैह ने भी समनान से सल्तनत को तर्क करके हिंदुस्तान तशरीफ लाए हैं। आप पूरा वाकया भी समाप्त कर चुके हैं। जब मखदूम पाक 25 बरस के हो गए, उस वक्त हज़रत खिज़िर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अशरे अखीरा में यानी शबे कदर की 27 शब में तशरीफ लाए और हज़रत खिज़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अशरफ इस तख्ते सल्तनत को छोड़ दो, अगर खुदा का दीदार और अल्लाह का विसाल चाहते हो, गुले मकसूद गुलजार माबूद से हासिल करना चाहते हो, तो उठो, सल्तनत को छोड़ो और हिंदुस्तान की तरफ रुख करो, इसलिए कि वहां मेरे दोस्तों में से एक दोस्त रहते हैं। उन्हीं की बागे विलायत से तुम्हारा गुले मकसूद खिलेगा। उन्हीं की विलायत लानिहायत से आलम भरा हुआ है। उनकी इनायत बेगायत की मिकराज आलम बनी आदम से गुमराही को तलाश रही है। वो अल्लाह के दोस्तों में से एक दोस्त है। आप समनान से हिंदुस्तान तशरीफ ले जाइए, उनकी बारगाह में जाइए, वहीं आपका गुले मकसूद हो मिलेगा, वहीं रब का विसाल होगा, रब का दीदार नसीब होगा, वहीं आपको रब का कमाल कुर्ब हासिल होगा। चुनांचे मखदूम हजरत अबुल अब्बास खिज़िर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मखदूम पाक की बारगाह में हजरत आपके पीर रोशन ज़मीर अलाउल हक वद्दीन गंजबाद लाहौरी कुद्दस रूही की तारीख इस अंदाज जो तारीख में साइफ शफी में लताइफ में मौजूद है। आपने कहा कि मेरे दोस्तों में से एक दोस्त रहते हैं, उन्हीं के बागी विलायत से तुम्हारा गुले मकसूद मिलेगा। उनकी विलायत लानिहायत से कायनात भरी हुई है और उनकी इनायत बेगायत की मिकराज आलम बनी आदम से गुमराही दलालत को तराश रही है। आप जाइए, आपका गुले मकसूद उन्हीं की बारगाह में मिलेगा। चुनांचे खिज़िर ने कहा, हजरत अलाउल हक वद्दीन गंजबाद लाहौरी मुर्शिद मखदूम समनानी की का तारुफ कराते हुए कहा कि वैसे हैं कि गुरे अखियार उन्हें साहिब कदम कहते हैं, गुरे अबरार उन्हें वाजिब कदम कहते हैं, औताद उन्हें यहया सादिक कहते हैं, अब्दाल उन्हें ईसा नफ्स कहते हैं, असहाब विजदान और अरबाब इरफान उन्हें शेख अलाउल हक वद्दीन गंजबाद लाहौरी कहते हैं, और बाद लोग उन्हें शेख अलाउद्दीन तिल कहते हैं। आलम मलकूत में उन्हें मूसा आसार कहा जाता है। आलम जबरूत में उन्हें खलील अनवार कहा जाता है। उशाक उन्हें यूसुफ सानी समझते हैं, और मैं खिज़िर हूं, मैं उन्हें खुल के मोहम्मद कहता हूं। ये तारुफ हजरत मखदूम गिरामी वकार मुर्शिद हक्कानी मुर्शिद कौनैन हजरत अलाउल हक वद्दीन गंजबाद का तारुफ मखदूम मशब जहांगीर समनानी की बारगाह में हजरत अबुल अब्बास खिज़िर ने कराया। एक तरफ वहां मखदूम पाक की बारगाह में हजरत अलाउल हक गंजनबाद का तारुफ कराया, और दूसरी तरफ अलाउल हक वद्दीन गंजनबाद के पास आए हैं अबुल अब्बास खिज़िर, और उन्होंने कहा कि समनान से एक शहबाज है, तो मखदूम पाक जब समनान से चले और हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए, अपने पीर रोशन ज़मीर मुर्शिद हक्कानी की बारगाह में जब ईसाई के लिए आने लगे, तो हज़रत खिज़िर ने हज़रत अलाउल हक वद्दीन गंजबाद लाहौरी से फरमाया कि समनान से एक शहबाज परवाज कर चुका है, और वक्त के तमाम बड़े बड़े मशाइख इकराम इस पर अपना जाल डालने के इंतजार में है। चुनांचे 70 मशाइख इकराम और अकाबिर औलिया के जाल से बच बचाकर मैंने अशरफ को आपकी बारगाह में बड़ी हिफाजत के साथ आपकी बारगाह में ला रहा हूं, और जिसकी तालीम व तरबियत और हिफाजत का जिम्मा आप पर है, आप उनकी तालीम व तरबियत फरमाइए और हिफाजत कीजिए। चुनांचे खुद आपके पीर रोशन ज़मीर हुज़ूर गंजबाद लाहौरी ने
फरमाया वो शख्स जिसका इंतजार 2 बरस से कर रहा था और जिसके दीदार की तमन्ना दिल में रखता था, आज कल में वो मेरा प्यारा तशरीफ लाने वाला है। हजरात, आपने औलिया उलमा की जिंदगी पढ़ी होगी, मशाइख के तरीकत के बैत व इरादत का सिलसिला पढ़ा होगा। सारे औलिया इकराम, बहुत सारे औलिया इकराम की जिंदगी आपने पढ़ी है, देखी है, सुनी है। हर जगह, हर जमाने में, हर मुरीद को हमने देखा है, बड़े से बड़े मुरीद को, कि पीर ने उनका बड़ा इम्तिहान लिया है, उनको उनकी उनसे बड़ी खिदमतें कराई हैं। पीर ने उनको बहुत इम्तिहान लिया है। खुद हमारे आपके गौस पाक हुजूर गौसुल महबूब सुभानी गौस आजम जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किस कदर इम्तिहानात से गुजरना पड़ा। कभी शेख हम्माद की बारगाह में, कभी हजरत अबू सईद मखदूमी की बारगाह में जाते, ये हजरात दरबार से निकाल देते इनके नफ्स को, ये हजरात इनके नफ्स को मुकम्मल तौर पर आसूदा करने की कोशिश करते, हर एतबार से इन्हें जांचा परखा। चुनांचे शेख हम्माद ने एक मर्तबा हुजूर पाक गौस पाक को दरिया में धकेल दिया, खाना नहीं देते, भूखे रखते, प्यासे रखते, निकाल देते। गर्जे के हर जमाने में बुजुर्गान दीन ने अपने होने वाले मुरीद और अपने होने वाले शागिर्द की का बड़ा इम्तिहान लिया। ऐसे ही हजरत ख्वाजे खाजगा नताए सूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए अपने पीर हैत उस्मान हारूनी की बारगाह में, तो 1-2 दिन नहीं बल्कि 20 साल तक आपने अपने पीर की खिदमत की है। उनके मुसल्ले, उनके बिस्तरे अपने कांधे पर ढोया है और उन्हें वजू का पानी दिया है, उनके आदाब बजा लाए हैं, उनकी खिदमतें की है। 20 साल तक सफर हदर में साथ रहे हैं। उनके मुरीद हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने जमाने तक अपने पीर की खिदमत की है। उनके पीर, उनके मुरीद हजरत बाफरी गंज शकर ने अपने पीर की खिदमत की इंतहा कर दी है। बाफरी गंज शकर ने इतनी खिदमत की है, इतनी खिदमत की है, इतनी खिदमत की है कि इनकी तारीख में लिखा है, बाफरी गंज शकर की तारीख में कहते बख्तियार काकी ने फरमाया, बाफरीद जाओ पानी गर्म कर दो वजू करने के लिए या नहाने के लिए पानी गर्म करो। चुनांचे लकड़ियां जमा की गई और गर्म करने का इंतजाम किया गया, तो आग नहीं थी। बाफरी गंज शकर तशरीफ ले गए तलाश करने के लिए, आग को लाने के लिए गए। जब गए कहीं आग नहीं मिली, देखा कि खातून आग जला रही है। आपने फरमाया बाफरीद ने कि खातून मुझे आग दे दो, मुझे आग की जरूरत है। खातून ने कहा कर आप आग लेना चाहते हैं, आप आग लेना चाहते हैं तो आग वैसे नहीं मिलेगी, आग की बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। हैते बाफरीद ने पूछा आग की क्या कीमत है, तो फरमाया कि आग की कीमत यह है कि आपको आग के बदले एक आंख देनी पड़ेगी। हजरत बाफरीद ने एक आंख निकाली और आंख निकाल कर उस खातून को दे दिया और आंख पर पट्टी बांधकर आग लाया, आग और पानी को गर्म किया, अपने शेख की बारगाह में पेश किया। आप देखें कि वैसे पीर नहीं मिला करते, वैसे बुजुर्गी नहीं मिला करती, खुदा का कुर्ब वैसे हासिल नहीं होता। पीरों की बारगाह में बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है। आंख की कुर्बानी दे दिया, आंख सूज गई, पट्टी बंधी हुई है। बख्तियार काकी ने देखा, पूछा फरीद ये आंख पर पट्टी कैसी है। पहले बहाना करने की कोशिश किया लेकिन वो तो जान ही रहे थे। बार बार जब इसरार किया तो बताया कि हुजूर मुझे आंख के बदले अपनी आंख देनी पड़ी है। आपने फरमाया तुमने आंख क्यों दे दिया, इतनी कीमती आंख क्यों दे दिया। एतबाब फरीद ने फरमाया ये तो एक आंख है सरकार, अगर आंख के लेने के लिए अगर 1000 आंखें होती देनी पड़ती तो मैं 1000 आंख देकर आंख को हासिल कर लेता, आपके लिए मैं पानी गर्म करता। चुनांचे हर जमाने में मुरीदों ने बड़े बड़े अपने पीरों की खिदमतें की हैं, ऐसी खिदमत की है कि जमाना हैरत ज़दा है। खुद हुजूर अलाउलकद्दीन गंजबाद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर अखी सिराज रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी खिदमत की है, ऐसी खिदमत की है उनकी, इतनी खिदमत की है कि घर में देख जो लंगर का बना करता था, घर में देख लंगर बनता उस देख पर लोग हजरत
अलाउल हक वद्दीन गंजबाल लाहौरी के सर पे घर में देग रख देते और रोजाना उठा कर ले जाया करते। और अलाउल हक वद्दीन गंजबाद का पूरा घराना बादशाह के वज़रा में से था, बड़े बड़े ओहदे पर फाइज था। मगर जब आप अलाउल हक वद्दीन गंजबाल लाहौरी आयने इंदकी सिराज रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक परस्त पर बैत हुए आप, तो आपने खिदमत की तो खिदमत की इंतहा कर दी, खिदमत की इंतहा कर दी। उनका देग लंगर का गर्म गर्म उठाते 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 हाल ये हुआ था हजरत अलाउल हक वद्दीन गंजबाल लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का कि आपके सर के बाल खत्म हो गए थे, सर के बाल उड़ गए थे, इस तरह खिदमत की थी। मगर यही अलाउल हक वद्दीन गंजबाल लाहौरी की बारगाह में जब मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी पहुंचे हैं, तो ऐसी तारीख दुनिया में किसी वली की नहीं मिलती है जो तारीख हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी की मिलती है कि खुद पीर उनके इस्तकबाल के लिए 4 कोस पर तशरीफ लाया है। पीर ने फरमाया है आज 2 साल से उस प्यारे का इंतजार कर रहा हूं। चुनांचे जब मखदूम पाक के पहुंचने का वक्त करीब आया, आपके पीर मखदूम अलाउल हक वद्दीन गंजबाल लाहौरी चाश्त के बाद आराम फरमा रहे थे कि अचानक बेदार हो गए। आपने फरमाया प्यारे की खुशबू आ रही है, फौरन निकल पड़े और आपके जितने खुद्दाम, जितने आपके असहाब, आपके रुफका, आपके खुलफा, आपके मुरीदीन थे, सब निकल गए और आपने अपनी एक पालकी ली और उस पालकी के साथ खुद अपने पीर रोशन जमीर की एक पालकी यानी आयने हिंद की सिराज की पालकी ली, अपनी पालकी ली। तमाम छोटे बड़े और शहर के तमाम मुअज्जिदीन मुरीदीन जाने वाले, बड़ी भीड़ हो गई, एक शोर हो गया कि लगता है कोई हुजूर अलाउल हक वद्दीन गंजबाल लाहौरी का कोई प्यारा आने वाला है जिनके इस्तकबाल के लिए तशरीफ ले गए हैं। चुनांचे हुजूर अलाउल हक वद्दीन गंजबाल लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह तमाम अपने मुरीदीन खुलफा चाहने वालों के साथ, शहर वालों के साथ मालदा शहर तक आप तशरीफ ले गए, जहां सेवल का एक दरख्त था, वहां पर आपने क़याम फरमाया। क़याम फरमाने के बाद देखा दूर से गर्द गुबार उड़ रही है और कुछ लोगों के आने के इशारे मिल रहे हैं। आपने अपने गुलाम को भेजा कि जाओ देखो कि कौन आ रहा है। तो जब गुलाम जाकर देखा तो उन्होंने कहा अशरफ नामी समनानी बड़ा नूरानी चेहरे वाला आ रहा है। हुजूर अलाउल हक वद्दीन गंजबाल लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सुनकर आगे बढ़े और उधर से मखदूम पाक तशरीफ ला रहे थे। दोनों तरफ से मोहब्बत के जज्बात का एक तलातुम था। दोनों मुरीद पीर की तरफ बढ़ा जा रहा था, पीर मुरीद की तरफ बढ़ा जा रहा था। चुनांचे बढ़ते बढ़ते गए, मखदूम पाक ने हजरत अलाउल हक वद्दीन गंजबाद के कदमों पर सर रख दिया। आपने उनका सर उठाया, अपने गले से लगाया और चिमटाया, दुआएं दी। फिर आपको उसी सेबल के दरख्त के करीब लाए और आपको बैठाया। बैठाने के बाद फिर आपको अपने खानका आपको बैठाने के बाद ले गए और अपनी पालकी पर सवार किया। मखदूम पाक ने फरमाया कि ये गुलाम, ये बंदा अपने पीर की पालकी पर नहीं सवार होना चाहता। अगर आका भी पालकी पर सवार हो और गुलाम भी पालकी पर सवार हो तो फर्क क्या रह जाएगा। लेकिन आपने बजीद होकर मखदूम पाक को अपनी पालकी पर सवार किया और खुद अपने पीर है तकीसराज की पालकी पर सवार होकर गए। जब खानका के करीब पहुंचे मखदूम पाक और आपके पीर पूरा शहर, तो जज्बाती तौर पर मखदूम पाक पालकी से उतरे। उतरने के बाद खानका की चौखट पर बोसा दिया और फिर आपके पीर है अलाउल हक वद्दीन गंजबाद रहमतुल्लाह अलैह ने आपको उठाया, सीने से लगाया और बैठाया, तमाम अपने सामने बैठाया। लोगों से कहा कि पानी ले आओ, खाना ले आओ। पानी लाए गए, किस्म के खाने लगाए गए। तमाम लोगों ने अपने अपने तौर पर हाथ धुला, लेकिन मखदूम पाक की, उनके पीर की बारगाह में उनकी ये हैसियत, उनका ये मुकाम था क्योंकि खुद पीर ने अलाउल हक वद्दीन गंजबाद लाहौरी ने आपके हाथ को धुलाया है और फरमाया फर्जंद अशरफ हाथ धुल लो, हाथ धुल लो ताकि कौनैन की सादतें हासिल हो जाए, कौनैन की बरकतें हासिल हो जाए। मखदूम पाक ने बतौर इनके सारी फरमाया कि हुजूर पहले ही से धुल कर हैं,
तैयार हैं, हाथ धुल कर बैठे हैं। चुनांचे बताजीम आप बैठे, आपके पीर ने आपको चंद लुक़मे खिलाए। खिलाने के बाद फिर वो बंगाल का मखसूस खाना पनभत्ता आया और आपको मखदूम पाक ने पनभत्ता खिलाया और फरमाया ये चावल भी खा लो, तशगाने वादिये तलब को इससे तस्कीन नसीब हुआ करती है। इश्क के चाहने वालों के जज्बात में ठंडक पे पहुंचती है, इसे खा लो। चुनांचे आपने खाया। खाने के बाद फिर आपको 4 पान की ग्लोरी खिलाई गई, खुद आपके पीर ने आपको खिलाया। और उसके बाद फिर बैअत इरादत का सिलसिला कायम हुआ। आपने मखदूम पाक को अलाउद्दीन के दरबार लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मुरीद किया, बैअत से सरफराज फरमाया और खुद अपने सर का ताज उतार कर मखदूम पाक के कदमों में ढेर कर दिया। उस दिन से तकरीबन कई बार पूरी जिंदगी में तकरीबन 12 साल तक मखदूम पाक अपने पीर की मुलाजमत में, खिदमत में, सोबत में रहे। कई बार आना जाना हुआ, हयात तैयबा में भी, फिर हयात तैयबा के बाद भी आप आए गए। 12 साल तक हयात तैयबा में मुख्तलिफ वफ़ा के साथ आप रहे और जिंदगी भर पीर की मुताबात खिदमत करते रहे, उनकी सोबत में रहे। मगर वैसा पीर नहीं देखा गया और वैसा मुरीद नहीं देखा गया। प्यारे, आपने मखदूम पाक ने फरमाया कि हुजूर मेरे मुताल्लिक खानका की कोई खिदमत दीजिए कि सरकार हम खिदमत करें। तो हजरत अलाउद्दीन के दरबार लाहौरी रहमतुल्लाह ने फरमाया, फर्जंद अशरफ तुम्हारे मुताल्लिक हम कौन खिदमत करें, हम जो भी खिदमत तुम्हें सुपुर्द करेंगे हजरत अबुल अब्बास खिज़र इस्लाम वो खिदमत को तुमसे पहले अंजाम दे देंगे, वो खिदमत तुम्हें अंजाम देने नहीं देंगे। अल्लाह अकबर, ये मुकाम है बारगाह हुजूर मखदूम पाक का, उनकी पीर की बारगाह में कि आप खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन खुद पीर कहते हैं हम जो भी खिदमत तुम्हारे सुपुर्द करेंगे हजरत अबुल अब्बास खिज़र अलैहिस्सलातु व तस्लीम वो खिदमत तुम्हें करने नहीं देंगे, पहले ही कर देंगे। चुनांचे आप खिदमत के कहाँ थे, खिदमत करते रहे, वजू का पानी, मुसल्ला, जानमाज और तमाम जरूरियात अपने पीर की बजा लाते रहे, उनकी हर ख्वाहिश का एहतराम करते रहे। ख्वाहिश का एहतराम ही नहीं किया बल्कि लताइफ अशरफी, साहिब अशरफी, आला तशफी मियाँ की और दूसरी किताबों को मुताला कीजिए तो आप सुने, आपको ये मालूम होगा कि हुजूर मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह सफर में, हजर में, जहां भी रहे, चाहे 2000 कोस की दूरी पर रहे, कहीं भी रहे, पूरी दुनिया की आपने सैर की है, 30 साल तक आपने सरुसात किए, जहां भी रहे, कहीं से भी आपने अपने पैर को अलाउद्दीन के दरबार लाहौरी यानी अपने मुर्शिद हक्कानी के शहर की तरफ फैलाया नहीं। अल्लाह अकबर। जिस तरीके से एक मुसलमान अपने कदम को किबला की तरफ नहीं फैलाया करता है, वैसे ही मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने अपने कदम मुबारक को अपने पीर की तरफ नहीं फैलाया है। चाहे यूरोप में हो, एशिया में हो, चाहे कोकाब की वादी में हो, चाहे जजीरे इंग्लैंड में हो, जहां भी रहे मखदूम पाक कभी न अपने पीर की समत की तरफ पैर फैलाया है, न कभी उनकी तरफ थूका है आपने। आप अंदाजा लगाइए एहतराम एक मुसलमान खाने काबा का, मक्के मुअज़्ज़मा का क्या करता है। लेकिन ये अहलुल्लाह ये जानते हैं कि खाने काबा ये नमाज का किबला है, लेकिन औलिया अल्लाह ये मार्फत इलाही के किबला हुआ करते हैं। इनसे खुदा की मार्फत हासिल होती है, खुदा का कुर्ब हासिल हुआ करता है। जिस तरह मोमिन ये अपने कदम को किबला की तरफ नहीं फैलाता, थूक किबला की तरफ नहीं फेंकता है, वैसे अहलुल्लाह अपने पैर को औलिया अल्लाह की तरफ, बुजुर्गान दीन की तरफ, अपने मशाइख की तरफ नहीं फैलाते। चुनांचे मखदूम पाक ने कभी भी जहां भी रहे कभी पैर नहीं फैलाया अपने पीर की तरफ, कभी भी उस तरफ समत करके थूका नहीं, ताकि दुनिया समझ जाए कि जिस जात करीम के नजदीक अपने पीर की इतनी अहमियत है, उस जात करीम के नजदीक रसूलुल्लाह के शहर की कितनी अहमियत होगी, सरवर दो जहां के शहर अजीम की कितनी अहमियत होगी, खुद उस मुस्तफा करीम के आदाब का आलम क्या होगा उसके अंदर। चुनांचे हम सुना करते थे कि इमाम मालिक जब भी मदीना तैयबा में रहे हैं, इमाम मालिक हमेशा
کبھی نے چپل جوتے نہیں پہنے امام مالک نے مدینہ طیبہ میں، اور امام مالک نے کبھی مدینہ طیبہ میں بول و براز نہیں کیے امام مالک نے. لیکن وہی تاریخ مخدوم پاک کی ہمیں بتاتی ہے کہ مخدوم پاک صرف پنڈوا شریف یا یہ کہ مالدہ شریف نہیں، بلکہ تاریخ بتا رہی کہ مخدوم پاک جب اپنے پیر دہلی تشریف لے گئے مخدوم پاک، تو دہلی میں بھی مخدوم پاک نے ننگے قدم آپ نے سیر کیا چلے ہیں، اس لیے کہ وہ جان رہے تھے کہ یہاں ہمارے پیر حضرت پیر کے پیر یعنی شیخ المشائخ نظام الدین اولیاء اور حضرت بختیار کاکی کی بارگاہ ہے، اس لیے وہاں بھی ننگے قدم مخدوم پاک چلے ہیں. آپ اندازہ لگائیے جس بارگاہ میں دہلی کی زمین کی اتنی اہمیت ہے، اس بارگاہ میں مدینے کی زمین کی کتنی اہمیت ہوگی. مخدوم پاک نے ہمیشہ اپنے پیر کی زمین کی تعظیم کی ہے. کبھی پنڈوا شریف میں مخدوم پاک نے پاخانہ اور پیشاب نہیں کیا ہے. یہی تاریخ امام مالک کی ملتی ہے کہ امام مالک نے کبھی مدینہ طیبہ میں نہیں کیا ہے. آپ اندازہ لگائیے امام مالک کی تاریخ مدینہ طیبہ کی ہے، مخدوم پاک کی تاریخ علاء الدین غزنوی کے شہر کی ہے. پیارے اتنی جن کے اندر اتنا احترام کا جذبہ ہوگا اپنے پیر کے سرزمین کے تعلق سے، ان کا اپنے پیر کے تعلق سے کیا جذبہ ہوگا خدمت کا، ہمیشہ خدمت کی کوشش کرتے رہے. لیکن پیر الحمدللہ پیر نے کبھی مرید نہیں سمجھا بلکہ ہمیشہ مراد سمجھا، اس لیے ہمیشہ خدمت کرنے سے باز رکھا مخدوم پاک کو، کہا تمہیں خدمت نہیں کرنی ہے، تم خدمت کرو گے تو تم سے پہلے ابو العباس خضر خدمت کو انجام دے دیں گے. بہرحال انہی بزرگوں کی خدمت اور اپنے پیر کی خدمت اور صحبت کی برکت سے مخدوم پاک کو اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا، مقام محبوبیت، مقام عطائے لقب جہانگیری، یہ سب کے سب مخدوم پاک کو اپنے پیر ہی کی بارگاہ ملا ہے. ان کی زندگی کو ہم کو دیکھ کر ہم کو بھی اندازہ ہوتا ہے، ہم کو آپ کو سوچنا چاہیے کہ اپنے پیر کی کیسی خدمت کریں، کیسے ہم جارو کشی کریں. اس لیے کہ پیر کی بارگاہ میں جتنی انسان خدمت کرتا ہے، جتنے آداب بجا لیتا ہے، اتنے ہی اللہ تعالیٰ اس کو مقام بلند عطا فرماتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو مخدوم پاک کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ان کے پیر روشن ضمیر اور تمام مشائخ چشت اہل بیت، مشائخ قادریہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.